Hello students, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve MCQs on a topic Pascal's law and Archimedes principles. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So, without wasting time, let us start one by one. First question, a silver ingot weighing 2.1 kg is held by a string so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8. The relative density of silver is 10.5. The tension in the string in kg weight is. Okay. So यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसा है. एक लिक्विड में हमने सिल्वर इनगट को डीप कर दिया और वो कंप्लीट इमर्ज हो रहा है क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है और सिचुएशन कुछ ऐसा होगा जस्ट लाइक दिस वन. ओके, दिस वन इट इज अ सिल्वर इंगट, दिस इज द स्ट्रिंग and this one is a liquid. Okay, so liquid की डेंसिटी कितना है? The density of the liquid it is nothing but the sigma. The density of this silver ingot it is nothing but the rho and this is the string. Okay, so इस string में कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. Okay, so what amount of tension get created in this string? We have to find out that one. Obviously, whatever the apparent weight of the silver ingot inside the liquid, so same amount of tension get created inside this string. Okay, so जितना apparent weight होगा इस silver ingot का उतना ही यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए. So कितना apparent weight होगा? So apparent weight it is represented by W suffix A. It is equals to volume into rho minus sigma into G. Okay, so this is the volume of this silver one. Okay, जो भी silver ingot है उसका volume है. Rho is the density of that silver and sigma is the density of that liquid. G is the acceleration due to gravity. Okay, so यहाँ पे volume के जगह पे मैं volume को in terms of mass और density लिख लेता हूँ. So mass it is equals to m upon rho ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी. ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, रो को अंदर लेके आइए. सो इट इज इक्वल टू एम, सो रो बाय रो बिकम 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी. ओके, सो व्हाट इज द एम? इट इज द मास ऑफ दिस सिल्वर इंगट. Sigma it is nothing but the density of the liquid which is given, relative density it is 0.8. Rho is the density of that silver, it is given, its density, relative density is at 10.5. Okay, substitute all these values. So 2.1 it is the mass minus 0.8 upon 10.5, रो की वैल्यू 10.5 है इंटू 10. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है इसका 1.94. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द अपरेंट वेट विच इज नथिंग बट द, जितना यहाँ पे अपरेंट वेट होगा इसका उतना ही यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा. सो देयरफॉर अपरेंट वेट या टेंशन इट इज इक्वल टू 1.94. इट इज अ kg weight. Okay, kg into weight. So 1.94 is a correct answer. B option is a correct one. Next question. A sample of metal weighs 210 gram in air, 180 gram in water, 120 gram in liquid. The relative density of metal कितना होगा और लिक्विड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी मेटल का हो सकता है 3, मेटल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल का हो सकता है 7, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है 3 या लिक्विड का डेंसिटी हो सकता है 1/3. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो बिफोर दैट
let us imagine that rho is a density of that metal, सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, और वाटर की डेंसिटी हम कितना लेंगे 1 कंसिडर करेंगे, रिलेटिव डेंसिटीज है। ओके, अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है प्रॉब्लम में उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू mg। ओके, सो एयर में वेट कितना है उसका 210 ग्राम, सो फॉर एयर इट इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू m इंटू जी, लेकिन m को कैसा लिखेंगे हम v इंटू रो। ओके, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब वाटर में उसके डेंसिटी, वाटर में उसका वेट कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 180 ग्राम, सो देयरफॉर 180 इट इज इक्वल टू v इंटू रो माइनस 1 इंटू जी। वाटर के अंदर उसका वेट आ रहा है 180 ग्राम। Okay, rho is a relative density of that metal, 1 is a relative density of that liquid, g is the acceleration due to gravity, this is the equation second। और उस लिक्विड में उसका वेट कितना आ रहा है 120 ग्राम इन अ लिक्विड। ओके, अब यहाँ पे लिक्विड में 120 ग्राम आ रहा है, इट इज इक्वल टू v इंटू, ओके, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कितना है सिग्मा है, सो देयरफॉर रो माइनस सिग्मा इनटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाता है 7 और सिग्मा की वैल्यू आ जाता है 3। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशंस वी गेट रो इज इक्वल टू 7 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो रो इज अ डेंसिटी ऑफ दैट मेटल, और यहाँ पे मेटल की डेंसिटी 7 है, यस, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। और लिक्विड की डेंसिटी कितना है 3, तो लिक्विड की डेंसिटी 3, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg per meter cube is floating in water of density 1000 kg per meter cube. The percentage of volume of ice cube outside the water is, okay, so situation जो भी है it's just like this one is the water, okay, this one it is nothing but the, imagine that it is a ice। जब आइस को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन वहाँ पे डीप हो रहा है। Okay, so let us imagine that total volume of this iceberg, it is equals to capital V total volume, and its density is nothing but the rho। Okay, so the amount of iceberg which is just sink inside this water, okay, let us imagine that it is a V inside। okay, V inside इतना वॉल्यूम उस आइसबर्ग का ये लिक्विड के अंदर सिंक हुआ है, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है V। ओके, सो V इनसाइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, V इनसाइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? तो अगर लिक्विड की डेंसिटी हम सिग्मा कंसिडर कर रहे हैं और इसकी डेंसिटी अगर रो कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे V इनसाइड सिग्मा इंटू जी इट इज इक्वल्स टू V आउटसाइड रो इंटू जी, यानी जितना वेट उस आइसबर्ग का है उतना ही लिक्विड, उतना ही वेट का लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, और कितना ये V इनसाइड यानी जो वॉल्यूम है उस आइसबर्ग का वो डीप हुआ है उतना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर जी जी गेट कैंसल, देयरफॉर V इनसाइड इट इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा इंटू V। Okay, V inside is equals to rho upon sigma into V. V is the total volume of that iceberg. V inside is nothing but the amount of volume deep inside the liquid. So here on the basis of these two, we can find out the V outside. Okay, V outside हम find out कर सकते हैं outside में कितना iceberg का volume बचा है। So for that V outside is equals to total minus V inside। ओके, सो टोटल की वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट द V, और इनसाइड कितना है, इनसाइड इज नथिंग बट द रो अपॉन सिग्मा इनटू V। सो रो अपॉन सिग्मा इनटू V। ओके, सो V को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा है
यहाँ पे 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ओके, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे v को ओके v इंटू 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू है यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 100, सॉरी रो की वैल्यू है 900 और सिग्मा की वैल्यू कितना लेंगे हम 1000। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद v आउटसाइड इट इज इक्वल्स टू v अपॉन 10। ओके, अब इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे v आउटसाइड अपॉन v इट इज इक्वल्स टू 1/10। इट रिप्रेजेंट 10% ऑफ v, यानी जो भी वॉल्यूम है उसका 10% वॉल्यूम बाहर होगा, 90% वॉल्यूम जो भी है वो इनसाइड होगा और 10% जो आउटसाइड होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉग ऑफ वुड of mass 120 kg floats in water. The weight that can be put on the raft to make it just sink should be the density of the wood. It is equals to 600 kg per meter cube. Okay, so हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसा है। यहाँ पे वाटर दिया है, उस वाटर के ऊपर एक वुड को हमने रख दिया। ओके, सो ये 100% सिंक नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या वाटर। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल कुछ वेट को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। जैसे आप वेट को अटैच कर रहे हैं तो उस वेट की वजह से क्या हो रहा है, इसका पूरा डिप हो रहा है। ओके, सो वुड का पूरा सिंक हो रहा है यहाँ पे लिक्विड के अंदर। ओके, अब ये जो भी सिचुएशन है, ये वेट कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका जो भी मास होगा उस मास की वैल्यू लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू x कंसीडर करते हैं हम। x इज नथिंग बट द मास ऑफ दिस वन। ओके, तो इसका मास दिया है इट इज इक्वल्स टू 120 kg वुड का। ओके, तो अब टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सो इट इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ दिस wood log along with this one it is equals to weight कितना हो रहा है टोटल, it is equals to m into g, और m कितना है, टोटल मास कितना है, it is equals to x plus 120 into g। ओके, तो इतना वेट उसका हुआ है जब आप इसको एक्सटर्नल मास को यहाँ पे रख रहे तब, और जस्ट ये सिंक हुआ है। ओके, अब ये सिंक होने के कारण, इतना वॉल्यूम अंदर आने के कारण कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। सो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका अमाउंट, उसका वेट, सो वेट ऑफ द लिक्विड विच डिस्प्लेड, वेट ऑफ लिक्विड इट इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट वुड लॉग इनटू सिग्मा इनटू जी। ओके, सो सिग्मा इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड विच डिस्प्लेस, g is the acceleration due to gravity, v is nothing but the volume। ओके, उस वुड लॉग का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, उसकी डेंसिटी हमें पता है। ओके, और उसका मास पता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट वुड लॉग। सो वॉल्यूम ऑफ दैट वुड लॉग इट इज इक्वल्स टू, इट इज अ मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ओके, मास कितना है, सो मास की वैल्यू यहाँ पे है इट इज इक्वल्स टू 120 अपॉन डेंसिटी कितना है 600। जो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.2 मीटर क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट लॉग वुड। ओके, अब यहाँ पे जितना वेट इंसर्ट हो, जितना वेट उस वुड लॉग का है अलॉन्ग विद दिस मास, तो उतना ही लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस होना चाहिए। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दोनों की वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर x प्लस 120 into g, it is equals to वॉल्यूम
v इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू एज इट इज रखेंगे हम g। सो दोनों साइड g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल होगा। सो x प्लस 120 इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना आया 0.2। ओके 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इट इज इक्वल्स टू 200। Okay, so last is x is equals to 200 minus 120, it is equals to 80. So 80 what? It is a mass 80 kg. Okay, so ये है आंसर उसका होना चाहिए कि जब आप 80 किलोग्राम का मास इस लॉग वुड पे रख रहे हो तब जाके वो वहां पे डीप होगा। ओके तो 80 kg इज आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next one, a hemispherical bowl just floats without sinking in a liquid of density 1.2 into 10⁻³ kg per meter cube. If outer diameter and the density of the bowls are 1 meter and 2 into 10⁻⁴ kg per meter cube respectively, then the inner diameter of the bowls will be. Okay, here we have to find out the inner diameter. Okay, so what is the situation, how is the situation looks like? It just looks like this one. So this one is a liquid, okay, and this one is that hemispherical bowl. Okay, so at equilibrium condition it's almost deep, okay, but it is floating, it is not sink. ओके अब क्या क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पे आउटर डायमीटर उसका दिया है, उसका आउटर डायमीटर की वैल्यू कितना है 1 मीटर। ओके डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं हम, और उसके बाद और बॉल की डेंसिटी भी दिया है यहाँ पे, वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। ओके सो उसके अलावा यहाँ पे इसकी भी डेंसिटी दिया है लिक्विड की, जो कि है 1.2 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ओके देखिए यहाँ पे इसका डेंसिटी कितना है, उस बाउल का रो, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। ओके लेट अस इमेजिन दैट रो बी द डेंसिटी ऑफ द बाउल, सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सिमिलरली r, imagine that r is a outer radius and small r is a inner radius. Okay, so हमें जो भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे इनर रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ओके सो अब सबसे पहले हम उस बाउल का वेट निकाल लेते हैं। ओके सो वेट ऑफ दैट बाउल इट इज इक्वल्स टू, कितना होना चाहिए वेट, सो वेट ऑफ दैट बाउल इट इज इक्वल्स टू जो भी इफेक्टिव वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट बाउल जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दैट इज अ v डैश इंटू रो डेंसिटी ऑफ दैट बॉल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके सो v डैश क्या है, इट इज नथिंग बट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल, क्योंकि इनसाइड अगर देखते हो वहाँ पे हॉलो है। ओके तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना है जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर वो हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज नथिंग बट द 4/3 पाई r क्यूब। ओके इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ 4r³ माइनस स्मॉल r क्यूब। ओके आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम इनटू रो इनटू g। ओके ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इतना उसका वेट बन रहा है उस बाउल का। ओके इस वेट के कारण कितना लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, सो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ओके जो भी डिस्प्लेस हुआ है इतना डिस्प्लेस होना चाहिए, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम यहाँ पे डीप हो रहा है, ओके देखिए कितना वॉल्यूम डीप हो रहा है, तो ये पूरा आपको जो भी दिख रहा है हेमिस्फीयर का जो भी वॉल्यूम है विद आउटर रेडियस, तो उतना वॉल्यूम वो वहाँ पे लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है। ओके सो v इंटू सिग्मा इंटू g। ओके सो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है, इट इज अ 4/3 पाई r क्यूब।
सिर्फ आउटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि इतना वो डीप हो रहा है, यहाँ पे इतना लिक्विड का वॉल्यूम वहाँ पे कम हो रहा है। ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, जितना इसका वेट उतना यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। ओके, उतने वेट का लिक्विड डिस्प्ले हुआ है। सो देयरफॉर दिस टू टर्म्स, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब रो जी, it is equals to 4/3 pi capital R cube sigma into G। ओके, क्या क्या कैंसिल होगा, जी जी गेट कैंसिल। ओके, 4/3 पाई 4/3 पाई गेट कैंसिल। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज द आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, इट इज इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू सिग्मा। ओके, अब इसमें क्या क्या दिया है, हमें पता है कि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमें पता है। ओके, इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। उसी के साथ साथ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ दैट बॉल भी दिया है और साथ साथ कैपिटल आर भी दिया है। ओके, कैपिटल आर उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया था, उन्होंने डायमीटर दिया था, लेकिन इसके बेसिस पे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटर रेडियस। तो जब हम सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू आना चाहिए, इट इज इक्वल टू 0.49 मीटर। ओके, और डायमीटर में फाइंड आउट करना था तो डायमीटर की वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल टू 0.98 मीटर। सो ये आंसर होना चाहिए। सॉरी, ये आउटर इनर डायमीटर है, सो इनर डायमीटर लेट अस इमेजिन दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, इट इज इक्वल टू 0.98 मीटर। सो ये आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी n greater than 1 times lighter than the water is suspended in water tank by a string tied to its base as shown in figure. Okay, if the mass of the sphere is m, then the tension in the string is given by. Okay, so for this let us imagine that sigma, it is nothing but the density of that liquid, is a liquid की density is sigma, और rho is the density of that solid sphere. Okay, this is the string. Okay, अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो भी डेंसिटी है सॉलिड स्फीयर की, इट इज लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। कितना लेस है, n टाइम्स लेस है। ओके, n टाइम्स लाइटर है। सो हियर वी कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, सिग्मा इज इक्वल्स टू n इंटू रो। ओके, n इंटू रो। ओके, वेयर n इज नथिंग बट द लाइटर है इतने टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ओके, अब देखिए अगर सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू द लिक्विड, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपथ्रस्ट क्रिएट होगा लिक्विड की वजह से उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर। जितना अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ओके, अपथ्रस्ट जितना क्रिएट हो रहा है, सो दैट अपवर्ड थ्रस्ट माइनस weight of the solid sphere, minus weight of the solid sphere, so इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा उतना ही टेंशन इसमें क्रिएट होना चाहिए। ओके, सो जो भी टेंशन इसमें क्रिएट हो रहा है, दैट टेंशन इट इज इक्वल्स टू, टेंशन इट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट माइनस weight of that sphere, weight of sphere. ओके, सो अपथ्रस्ट कितना होगा यहाँ पे, सो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू V इंटू सिग्मा इंटू जी। V is the volume of that solid sphere, sigma is nothing but the density of liquid, g is the acceleration due to gravity, minus weight कितना होगा उसका, so V rho g. Okay, rho is the density of that solid. So this is nothing but the टेंशन इन द स्ट्रिंग। इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और वो
ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है लेकिन उसको रोक के किसने रखा है, स्ट्रिंग ने। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट टेंशन इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन सिग्मा की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू एन इंटू रो। सो देयरफॉर substituting this value, so v into n into rho in g minus v rho g। ओके, सो यहाँ पे हम रो जी को बाहर निकाल लेते हैं, v रो जी को। सो n minus 1 v rho g। okay, what is a v? It is a volume of this one solid sphere. Rho is the density of that solid sphere. Okay, density multiplied by volume, it is nothing but the mass. So therefore it is equals to n minus 1 into m, n minus 1 into m into g। okay, so this is a answer। so tension जो भी प्रोड्यूस होगा it is equals to ब्रैकेट में n minus 1 into mg। so option D is correct one। last question, a ball whose density is 0.4 into 10 to the power 3 kg meter cube per meter cube falls into water from a height of 9 centimeter. To what depth does the ball sink? okay, तो सिचुएशन कैसा है देख लीजिए पहले। सबसे पहले let us imagine that this is the water tank। okay, so this one is that ball। इस बॉल की डेंसिटी जो भी है, दैट डेंसिटी ऑफ द बॉल इट इज गिवन, इट इज इक्वल्स टू रो एंड हुज वैल्यू इज नथिंग बट द 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हम लेंगे यहाँ पे सिग्मा। ओके, अब यहाँ पे h एक हाइट से उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, इस हाइट से। सो यहाँ से लेके मान के चलिए अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो वो जो भी बॉल है यहाँ से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। जब उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इट इज इक्वल टू 0। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो पूरे इसमें उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक उसकी वेलोसिटी होगा v, लेकिन जैसे वो लिक्विड के अंदर जाना चाहेगा तो यहाँ पे लिक्विड उसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो अपवर्ड थ्रस्ट के कारण यहाँ से लेके यहाँ तक उस बॉल का क्या होना चाहिए, डी एक्सेलरेट होना चाहिए। सो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, फाइनली वो यहाँ पे आके रुकेगा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगा। सो अपवर्ड थ्रस्ट के कारण वो बाद में ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है दैट इज नथिंग बट द h, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा दैट डेप्थ इज नथिंग बट द d। ओके, सो अब यहाँ पे रो इज अ डेंसिटी ऑफ दैट बॉल एंड सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ओके, सो सबसे पहले उसको वेलोसिटी कितना मिल रहा है हम v वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो आ रहा है, यानी ग्रेविटी के कारण वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच। ओके, h इज अ हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप। ओके, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे उसका कितना होना चाहिए, इतना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे वो लिक्विड में एंटर करेगा ड्यू टू द अप थ्रस्ट उसका डी एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो जो भी डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है दैट रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अपरेंट वेट इनसाइड दिस वन। Okay, apparent weight inside this one, that is nothing but the one type of force upon mass of that ball। okay, so apparent weight कितना बनेगा उसका, it is equals to v into rho minus sigma into g। ये होगा उसका apparent weight inside the liquid upon weight mass को हम लिख सकते हैं volume into density। ओके, ऑफ दैट बॉल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद
एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी रिटार्डेशन की वैल्यू कितना आएगा, सो इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वी गेट कैंसिल, रो की वैल्यू कितना है 0.4 है दिया है, और लिक्विड का डेंसिटी कितना लेंगे, लिक्विड है वाटर तो उसकी डेंसिटी हम लेंगे 1। सो रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, सो रो की वैल्यू 0.4 माइनस 1 अपॉन 0.4 इंटू जी। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू जी, -3/2 इंटू जी। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। माइनस में है तो डेफिनेटली वो डी एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर हम सिर्फ यहां से लेके, मैं यहां से रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, यहां से लेके अगर मैं यहां तक ड्रॉ सिचुएशन देखता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉल का मोमेंट हो रहा है यहां से लेके यहां तक। ओके, जब यहां से लेके यहां तक उसका मोमेंट हो रहा है तो उसका डी एक्सेलरेशन कितना है, -3/2 इंटू जी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d, दैट इज नथिंग बट द डेप्थ। सो यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, उसके हिसाब से अगर लेते हैं, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं v स्क्वायर, ओके, 0 माइनस वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। ओके, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -3/2 इंटू जी, ओके, 2as, s कितना है यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है d। ओके, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर, ओके, v की वैल्यू पता है हमें ट्वाइस जी एच अंडर रूट ऑफ, तो स्क्वायर करते हो तो इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस जी एच, इट इज इक्वल टू, ये 2 गेट कैंसल, -3GD। ओके, सो माइनस माइनस गेट कैंसल हियर, और h की वैल्यू हमें पता है, इट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सो जी गेट कैंसल, यहाँ पे जी गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, इट इज इक्वल टू ट्वाइस h की वैल्यू कितना है 9, सो इट इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3D। ओके, सो d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आया, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जो भी डेप्थ है, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है इनसाइड द लिक्विड, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।